Jai Hind to all of you. Today we are here to discuss about the importance of narration in the screening process. As we all know that screening process consists of the two tests. The very first is of OIR test and then after the PPDT, which stand for Picture Perception and Discussion Test. As we have already discussed about the OIR test in detail in previous video. Now we are here for the specific for the narration part. In the PPDT also the specific for the narration part. So by the time you came to know that the importance of the narration is so high in getting to screen in the SSB. Okay, so let me brief you about the procedure of the PPDT. The very first, you will get a sheet of paper written PPDT on the top side, and a box will be drawn on that paper, and before and below that box there will be written action, and before that story. Now you will be shown a picture, and that picture will rest on the screen only for the 30 seconds. After that 30 seconds you will get 4 minutes in order to fill the box and write the action, and then after imaginary story based on the theme of that picture. After completing the writing portion, you will go to another room where you will be grouped into a number of approx 10 to 15 candidates, and you will be sitting in a semicircle person in like the same manner. The narration will start from the right hand side of the group. Okay, you will get approximately 1 minute to narrate the story, and then after next candidate, the next. Once the last candidate of a group narrated his story, automatically your group discussion will start, and you have to come on the common story or common conclusion of the group. Then after, one of your group member will stand up and give the common story to the assessor. That's the simple process of the PPDT. But what is the key to get screening? And the answer is none other than the narration. The narration must be that fluent, that accurate, that it will lead to the screening of that candidate. So narration is a key factor in SSB screening, and being a defense aspirant, you need to be well aware of the do's and don'ts of narration. As a part of the screening test, once the story is written, member of the group sit in a semicircle where already I have told you about these things. You can simply read over this PPDT. So what does the narration consist of? Let me give you the sample narration. Suppose if you have seen a picture in which there are 4 candidates, in which 2 were male and 2 were female, and all were in the positive mode, and I guess that they aged in between 20 to 25 years. Take a roughly age for sake. The minimum age is 20 and the maximum the candidate is having the age in that picture is 25. Okay, so you can summarize this in your narration. In the first 10 seconds of the narration, try to cover all that box and the action, and then after come to story after 8 or 10 seconds. For sake, let me give you the answer on the same picture which is having the 10 which is having 4 characters. Good morning, gentlemen. From the picture shown to us, I perceive 4 characters, in which 2 were male and 2 were female. All were in the positive mode and aged between 20 to 25 years. The action of my story is celebrating a birthday party. My story goes like this. This is a sample story. Maybe the celebration of birthday party is happening in that picture as per I perceive. What I have done is, in the starting of the 10 seconds, I covered the box. How many candidates are there? What is the mood of those candidates? What is the age of those candidates? And what is the action of my story? Here, action matters the most. नरेशन तो मैटर कर ही रहा है, उस नरेशन में भी सबसे ज़्यादा जो मैटर करेगा वो एक्शन, क्योंकि ये 3-4 शब्द में हम पूरे क्रक्स को बता रहे हैं कि मेरी स्टोरी में हो क्या रहा है. ये एक्शन सुनते मान ऐसा दिमाग में वो पिक्चर फ्रेम होनी चाहिए. फॉर सेक आई सेड यू द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थडे पार्टी, और सेलिब्रेटिंग बर्थडे पार्टी मीन्स कि 3-4 लोग ऐसा खड़े होंगे, कुछ केक वेक रखा होगा या फिर कुछ ऐसा टोपी वोपी बर्थडे वाला पहने होंगे, कैंडल वैंडल जल रहा होगा, कुछ ऐसा ही आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो रहा है. और एग्जैक्टली यही पिक्चर था. तो पिक्चर जो भी हो उसका नरेशन वो एक्शन में दिखना चाहिए. डिस्कसिंग ओवर पर्टिकुलर थिंग, ओके, हेल्पिंग इन फार्मिंग और परफॉर्मिंग ए ड्रामा. तो ये सारी चीज़ें जो एक्शन आप देख रहे हैं उससे एक इमेज आपके दिमाग में फॉर्म हो रही है. और साइकोलॉजिस्ट में भी वही देखना चाहता हो, क्या इसका एक्शन सुन के मेरे दिमाग में वही स्टोरी फ्रेम, वही पिक्चर फ्रेम हो रही है कि नहीं. अगर आप वो पिक्चर उसके दिमाग में फ्रेम करने में कामयाब रहे तो यकीन मानिए यू आर गोइंग टू बी इन दिस टाइम. ओके, तो दिस इज अ सैम्पल नरेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डूज एंड डोंट्स ऑफ द नरेशन. द वेरी फर्स्ट इज डूज. Keep your head straight and try looking at everyone at least once, not an eye to eye contact. Okay, I'll get to this point.
Keep the intention of the briefing others instead of thinking of it as an obligation or test. If someone has given a better story, be courageous enough and appreciate the same, having the intention of explaining the matter to everyone. Simple. The things that you are going to be, and that जो आपको शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि you have to keep your body calm. अपने इन हाथ को ऐसा अपने लैप पे रेस्ट रखने दो. बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट चलाओ नहीं, समटाइम वो नेचुरल होता है ऐसा, बट उस स्टेज पे कोशिश कीजिए कि अपने हाथ को रेस्ट पोजीशन में रखें. आई कांटेक्ट सबसे बना के रखना है, बट वो ऐसा घूरने वाला नहीं. सबसे नरेशन देते समय, जेंटलमैन फ्रॉम द पिक्चर शोन टू अस आई परसीव अ सेंट लाइक दिस, ऐसा दिखना चाहिए कि वो आप सबसे बात कर रहे हो, अपनी स्टोरी को उनको सुनाना चाह रहे हो. सिर्फ इसलिए नहीं आप नरेशन देने आए हो क्योंकि ये एक टास्क है. अगर टास्क लेके करोगे तो फिर उतना आपका फील नहीं आएगा. वो उनको ऑडियंस मान के चलो, ऑडियंस को कैसा इम्प्रेस करना है ये आपके नरेशन में दिखना चाहिए. योर पिच मॉड्यूलेशन, किधर अपने वॉइस को कम करना है, किधर ज़्यादा करना है. अगर मैं आपसे बात करते समय इस कैमरे के अलावा किसी और को देखूं, क्या वो कनेक्शन हमारे बन पाएगी? नहीं. इसी तरीके से कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज़ है आई कॉन्टैक्ट. तो उनसे आँख से आँख मिला के आपको बात करने की कोशिश करना है. हाँ, बट किसी में इतना मत खो जाना कि आप भूल जाओ कि आपका नरेशन क्या चल रहा था. ओके. हाँ, नेक्स्ट थिंग, अगर जब एक बार आपका नरेशन ख़त्म हो जाए तो ऐसा नहीं कि वो टास्क कंप्लीट हो गया छोड़ो, आपको दूसरे के नरेशन पे भी बहुत ही बारीकी से नज़र रखनी है. अगर उनकी स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो एप्रिसिएशन भी करना है. हाँ, ओके, गुड. ओके, इससे दो फायदे होंगे. पहला, डिस्कशन के समय आपको पता रहेगा कि पर्टिकुलर चेस्ट नंबर की स्टोरी क्या है, उसके पॉइंट्स क्या है, तो वहाँ से आप ले सकते हो. दूसरी चीज़, अगर आप उसको अप्रिसिएट कर रहे हो और एट द सेम टाइम वो देख रहा है, तो मे बी ग्रुप डिस्कशन में वो आपका फेवर करेगा या फिर आपके नरेशन में वो भी आपका हेल्प करने वाला है. ओके. तीसरी चीज़, ऐसा खत्म होने के बाद हाँ चलो भाई नरेशन खत्म हो गया, फिर ग्राउंड में ऐसा देखने लगे नीचे. अवॉइड दिस थ्रू आउट द टाइम. चिन अप, ठीक है, इतना चिन अप करके सबसे कॉन्फिडेंटली आई कॉन्टैक्ट रखिए. नरेशन देते समय भी ऐसा नीचे देख के, ऊपर देख के, दाएं बाएं देख के नरेशन नहीं, अपने ग्रुप मेंबर्स को देख के. रिमेंबर, सिर्फ अपने ग्रुप मेंबर्स को देख के, इवन नॉट टू बी एसेसर. हाँ, दोज डोंट्स, नेवर क्रिटिसाइज अनदर स्टोरी. ये डोंट्स आपके नरेशन के नहीं, स्पेशली ग्रुप डिस्कशन के. ग्रुप डिस्कशन में आई टोटली और स्ट्रांगली डिसएग्री विथ योर स्टोरी जेंटलमैन, इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने से बचिए. ट्राई टू बी कोऑपरेटिव इन द ग्रुप डिस्कशन. ओके. डोंट हैव टू कीप दैट फेक स्माइल. हाँ, क्योंकि मैं बोला हूँ कि स्माइल रखना, एक चार्मिंग फेस रखना, इसके लिए ज़बरदस्ती स्माइल मत रखना. बात अभी कुछ उधर मान लो कोई डाउरी सिस्टम की या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी बात हो रही है, एंड स्माइलिंग एट दैट टाइम, तो वो थोड़ा वेग लगेगा. डू नॉट लुक डाउन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. गो विद द कॉन्फिडेंस इवन इफ यू हैव क्रम्बल्ड एवरीथिंग. एक चीज़ याद रखना, किसी एक चीज़ की वजह से आप इन या आउट नहीं हो सकते. वो सीरीज ऑफ मिस्टेक या सीरीज ऑफ कुछ अच्छी चीज़ें आपको इन या आउट कराती हैं. तो अगर एक आध चीज़ ऊपर नीचे हो भी रहा है, डोंट बॉदर अबाउट दैट. सपोज इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द स्टोरी इन द रिटन सेक्शन, अबाउट दैट, बट अपने स्टोरी में उसका कंप्लीट कर देना. ठीक है, इस बात का लोड लेके नहीं रखना कि यार मैं तो पूरी स्टोरी लिख ही नहीं पाया, मैं क्या बताऊंगा, या फिर मेरी स्टोरी लाइन तो सबके मुकाबले बहुत अलग जा रही है. सबने बर्थडे सेलिब्रेशन किया है और मैंने तो इस पर कुछ और प्रोजेक्ट बना दिया है. हो सकता है आप सही हो सकता है आपका परसेप्शन सही है, क्योंकि परसेप्शन मैटर करता है. ओके. तो किसी चीज़ को लेके, एक चीज़ को लेके नहीं मेरा तो गया ये चांस, नहीं, हर बार आपके पास चांसेस हैं. अगले चांस में, अगले जो आपका अगला टास्क है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए. बाकी पीपीडीटी और एसएसबी से रिलेटेड ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए यू कैन ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट. हियर we'll have a proper guidance under these officers, and we will have also practice of various aspect of the SSB. Till then, keep preparing. Jai Hind.